آج رمضان المبارک کی 4 تاریخ ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے مجاہدین کی صفات۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بہت سارے نبی ایسے گزرے ہیں، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ایسے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر کے بہت سارے اہل اللہ نے یعنی اللہ والوں نے بہت سارے مل کر کے اللہ کے راستے میں قتال کیا ہے۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ کے راستے میں انہیں جو بھی تکلیفیں پہنچی اس کی وجہ سے وہ کمزور نہیں ہوئے، بزدل نہیں ہوئے۔ وَمَا ضَعُفُوا، اور نہ ہی انہوں نے کمزوری دکھائی۔ وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ ہی وہ پست ہمت ہوئے، نہ ہی انہوں نے کافروں کے آگے گھٹنے ٹیکے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 جو غزوہ احد کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ غزوہ احد جو شوال سن 3 ہجری میں پیش آئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کو لے کر نکلے تھے، لیکن بعد میں راستے سے 300 منافقین واپس لوٹ آئے تھے اور 700 صحابہ کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے دامن میں قریش کا مقابلہ کیا تھا، اور قریش 3000 کی تعداد میں آئے تھے۔ پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ترکیب کے مطابق مسلمان فتح یاب ہوئے، لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کے بعد جب ان 50 تیر اندازوں نے وہ پہاڑی چھوڑ دی جہاں اللہ کے وسلم انہیں بٹھایا تھا اور کہا تھا نہیں چھوڑنا، جب انہیں وہ چھوڑ دی تو اس کے بعد پھر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، بہت سارے صحابہ زخمی ہوئے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دانت ٹوٹ گئے اور آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، آپ بے ہوش ہو گئے، بلکہ آپ کے بارے میں افواہ اڑا دی گئی کہ آپ قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر پست ہمتی پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ بہت سارے مسلمان میدان چھوڑ کر کے بھاگ کر مدینہ میں داخل ہونے لگے تھے۔ تو اس وقت مسلمانوں کی عجیب کیفیت تھی اور دوسرے لوگ آ کے راستہ دکھا رہے تھے۔ مدینہ کے اندر جو منافقین واپس جا کر گھروں میں بیٹھ گئے تھے، انہیں موقع ملا، انہوں نے مسلمانوں کو رغلانا شروع کر دیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے نبی ہوتے تو آج یہ حالات سے تھوڑی 2-4 ہوتے، وہ ایک عام انسان ہے، کبھی فتح پاتے ہیں کبھی شکست کھاتے ہیں، ان کا ساتھ چھوڑ دو اور لوٹ آؤ اپنے باپ دادا کے دین پر۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ کتنے ایسے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ اللہ والوں نے مل کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، لیکن جو کچھ بھی انہیں تکلیف اللہ کے راستے میں پہنچی، چاہے انبیاء قتل کر دیے گئے، بہت سارے لوگ صحابہ بھی ان کے ساتھی بھی شہید ہوئے، لیکن انہوں نے بزدلی نہیں دکھائی، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی۔ فما وہنوا، انہوں نے کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں تکلیفیں پہنچی انہیں، اس کی وجہ سے کمزور نہیں ہوئے۔ وما ضعفوا، اور نہ ہی وہ انہوں نے کمزوری دکھائی، نہ بدنی طور پر جسمانی طور پر کمزور ہوئے۔ وما استکانوا، اور نہ ہی وہ عاجز و درماندہ ہوئے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وما استکانوا کے بارے میں کہ انہوں نے جزا فضا کا اظہار نہیں کیا۔ امام سدی اور ابن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دشمن کے سامنے عاجز و درماندہ نہیں ہوئے۔ اسی طرح سے امام قتادہ اور ربیع بن عاصم فرماتے ہیں کہ اپنے نبی کی شہادت پر انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اپنی بصیرت اور دین سے وہ پھرے نہیں، بلکہ وہ بھی اسی راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو پچھلے انبیاء کے واقعات اللہ رب العالمین بیان کر کے صحابہ کرام کو تسلی دے رہا ہے کہ دیکھو کتنے ایسے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ جہاد کرنے والوں نے اس طرح سے تکلیفوں سے ہمت نہیں ہارے، بلکہ وہ ڈٹے رہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ پہلی صفت ہے اور بنیادی صفت ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی، مجاہدین کی، کہ وہ ان کے اندر صبر ہونا چاہیے، حالات کیسے بھی ہوں ڈٹے رہنا چاہیے۔ ایک بار اللہ کے راستے میں حق سمجھ کر کے جب وہ نکلے ہیں، جب وہ کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر قدم پیچھے نہیں ہٹانا چاہیے۔ یہی مجاہدین کی بنیادی صفت ہے۔ اسی لیے میدان جنگ سے بھاگنا یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔
تو एक मोमिन, एक मुसलमान जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के लिए खड़ा होता है तो फिर वो पीठ नहीं दिखाता है, वो पश्चिमती नहीं दिखाता है, सब्र करता है, तभी वो कामयाबी से हमकिनार होता है। ये बहुत बुनियादी सिफत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ भी मुजाहिदीन की सिफत का तज़किरा किया है वहाँ सब्र का तज़किरा किया है। सूरह तौबा के अंदर जहाँ अल्लाह ने फरमाया कि व इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून यगलिबू मिअतैन, अगर तुम में से 20 सब्र करने वाले हों तो 200 पर गालिब आ जाएंगे। बल्कि ये फरमाया कि अगर तुम्हारे अंदर 100 लोग भी ऐसे हों तो 1000 पर गालिब आ जाएंगे। उसी आयत के अंदर आगे है वही यकुम मिनकुम अल्फु यगलिबू अल्फैन, अगर 1000 हो तो 2000 पर गालिब आ जाएंगे। लेकिन सब्र, शर्त यह है कि वो सब्र करने वाले हो। तो सब्र ये बहुत बुनियादी सिफत है कि डटे रहना, जमे रहना। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में निकले हैं तो फिर फतेह मिले या शिकस्त मिले, माले गनीमत मिले या सब कुछ लुट जाए, इसकी कोई परवाह नहीं है। शर्त बस यही पेश नजर होता है कि हम हक पर हैं। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सुलह हुदैबिया के मौका पर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर जब तक सुलह कर रहे थे तो उमर फारूक ने जुमला यही कहा था, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे हम अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाएं या कत्ल करें, क्या आप हक पर नहीं है? तो आपने फरमाया क्यों नहीं, उस जात की कसम जिसके हाथ जिसने मुझे नबी बनाकर भेजा है, हम हक पर हैं, चाहे हम कत्ल कर दिए जाए चाहे हम कत्ल करें। तो फिर वो फारूक ने कहा कि फिर हम दबकर क्यों सुलह कर रहे हैं, फिर हमें दबने की क्या जरूरत? साहबे किराम की यह खुसूसियात थी कि वो बस इतना जानते थे कि हम हक पर हैं। न तादाद की फिक्र होती थी, न असबाब वसाइल की फिक्र होती थी, और न फतवा शिकस्त की फिक्र होती थी। बस अल्लाह के रास्ते में जो काम आ जाए वही कामयाबी समझते थे। इसीलिए आगे अल्लाह ने फरमाया कि दूसरी सिफत यह है कि वो दुआ करते हैं। अगर उन्हें शिकस्त विचार होना पड़ा कभी तो फौरन अपने गुनाहों की तरफ उनका ध्यान जाता है कि हमसे कोई गलती हुई है, तब हमें शिकस्त दो चार होना पड़ा है, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगते हैं और अल्लाह से तारीफ करने की दुआ मांगते हैं। जैसा कि अगली आयत में उसी सूरह आल इमरान की आयत नंबर 147 में है, वमा कान क़ौलुहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। और उनकी बात, उनका कौल तो यही होता है कि हमारे रब हमारे गुनाहों को बख्श दे, और हमने अपने मामले में जो ज़्यादती की अपने नफ्सों पर उसको भी बख्श दे, वसब्बित अक़दामना, और हमारे कदमों को जमा दे, वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, और काफिरों की कौम पर हमें हमारी मदद फरमा। तो ये गुनाहों से अपने गुनाहों का ध्यान जाता है कि शायद हमसे कोई गलती हुई, कोई गुनाह हुआ जिसकी वजह से हमें शिद्दत का सामना करना पड़ा है, वरना उन्हें अल्लाह की मदद पर पूरा यकीन होता है कि अल्लाह की मदद हमारे साथ है। इसीलिए असबाब वसाइल से ज्यादा वो अल्लाह की मदद के ख्वाह होते थे, और मैदान जंग में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र और अल्लाह से दुआ करना नहीं भूलते थे। चाहे जंग बदर का मौका हो, देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से गिरिया उजारी के साथ दुआएं की, चाहे जंग उहुद का मौका हो, दुआ करना नहीं भूलते थे। ऐसे हर मामले में, हर जगह पर। तो पहली सिफत यह है कि सब्र करते हैं, दूसरी सिफत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर तवक्कुल भरोसा करते हैं और अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गुनाह की वजह से दुश्मन गालिब आ जाता है। यानी जो मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जिहाद करते हैं, अल्लाह के दिल से बुलंदी के लिए कोशिश करना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि गुनाहों से दूर रहें। अगर वो गुनाहों में लथपथ होंगे तो फिर दुश्मन उन पर गालिब आ जाते हैं। और आज अपने हम हालात का जायजा लें कि हमारी हालतें क्या है, किस तरह गुनाहों में लथपथ हैं। इसी तरह से अब्दुल रहमान किलानी साहब अपनी तफसीर के अंदर तफसीरुल कुरान के अंदर फरमाते हैं कि मुजाहिदीन की दो अहम सिफात हैं। एक ये कि वो सब्र करने वाले होते हैं, दूसरा ये कि असबाब वसाइल से ज्यादा वो दुआ का सहारा लेते हैं। ये उनकी अहम तरीन सिफत। और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबे किराम जो तरबियत की थी वो सब्र करने वाले जैसी तरबियत की थी, कदम कदम पर सब्र करने की तलकीन की थी। जैसे कि मशहूर वाक़या है कि खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का के अंदर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के पास टेक लगाए बैठे हुए थे, अपनी चादर ओढ़े, तो आए और कहा अल्लाह के रसूल बहुत तकलीफ हो रही है, मक्का के मुश्रिकीन हमें बहुत सता रहे हैं, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी मदद करे और इनका काम तमाम करे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगा टेक छोड़ करके बैठ गए सीधे होकर, और आपने फरमाया तुम जल्दी कर रहे हो, तुमसे पहले ऐसे लोग गुजरे हैं इस दीन पर चलने वाले कि उन्हें इस दीन पर चलने की वजह से इस जुर्म में
लोग उनको उन जमीन में आधा गाड़ देते थे और उनके स्तरों पर आरे रख करके उनको चीर कर 2 टुकड़े कर देते थे। लोहे की कंघियों से उनके बदन के गोश्त को नोच नोच करके इस तरह से खाली कर देते थे कि हड्डियां दिखाई देने लगती थी, लेकिन ये चीज उन्हें राह हक से हटा नहीं सकती थी। ऐसी तकलीफें लोगों ने अल्लाह के रास्ते में बर्दाश्त की है, लेकिन दीन नहीं छोड़ा है। आज तुम जल्दबाजी कर रहे हो। तो देखें, सहाबे किराम जो तकलीफ की शिकायत करते हैं कि लोग हमें सता रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल उन्हें सब्र की तलकीन करते हैं। तो सब्र अगर इंसान के अंदर हो तभी ये इतना अहम तरीन अफजल तरीन काम कर सकता है। आज आप देखें, सब्र की कमी की वजह से लोग माह रमजान का 1 महीने का रोजा ढंग से नहीं रख पाते हैं, 4 दिन में थक जाते हैं। तरावी नहीं पढ़ पाते ढंग से, 4 दिन में थक जाते हैं। कोई भी काम करते हैं बस थोड़े की दोस्त की तरह थोड़े दिन उबल कर आते हैं, उसके बाद फिर बैठ जाते हैं। ये हालत है हमारे सब्र की। हमारी सब्र की कैपेसिटी कितनी लो हो गई, कितनी कमजोर हो गई है। जबकि जिहाद फी सबीलिल्लाह ये तो चोटी का काम है, ये इस्लाम का कोहान है, इस्लाम की चोटी है। ये ऐसे सब्र करने वालों से सर हो सकेगा? उसके लिए इंतहाई बहुत बड़े सब्र की जरूरत पड़ेगी और ऐसे सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा, तब उनसे अल्लाह ताला ये काम लेता है। तो ये मुजाहिदीन की अहम तरीन सिफत है। अल्लाह ने बयान फरमाई है कि वो सब्र करने वाले होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको सही मानों में सब्र करने वाला बनाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो मदद है सब्र करने वालों के साथ, इन्नल्लाह मअस साबिरीन वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। हम सबको अल्लाह ताला अपने साबिर बंदों में शामिल फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।